Hello friends and my dear students, welcome to English with Evelyn, and today we'll again continue with the MPTET exam series that we are doing for the benefit of the candidates who are appearing for the MPTET Mains English exam PGT. Okay, so since we are continuing with unit 2, I've taken up adverbs. Now we do know that adverbs are words that talk about give information about the verbs, but since verbs is a very elaborate topic, there are 2-3 other topics that we'll have to do when we do verbs. So I've thought of taking up the adverbs first, and then when we do the verbs, we'll do all kinds of, we'll do the auxiliary, we'll do the finite, non-finite, we'll do transitive and intransitive, and we'll do the modals. We'll do all the verbs together, and then of course one separate topic for the tenses. Now since tenses ऐसा टॉपिक है जो मैंने बहुत बार ऑलरेडी दिखा दिया है, मतलब कर दिया है अपने अलग अलग वीडियोज़ में, तो टेंसेस को मैं उतना डिटेल में नहीं लूँगी. आप एक बार टेंसेस को के बाकी के वीडियोज़ जो भी है ना मेरे चैनल पर, आप पहले उनको भी देखिएगा और फिर देखिए अगर कोई गैप्स रह जाते हैं तो उसको हम फिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. एंड एज यू नो, आई हैव क्वालिफाइड फॉर MPTET ऑलरेडी. I had worked as a government teacher for a very short while, then I had left, but nevertheless, I know what it takes to clear the exam. All right, so I'm there with you till the end. I'm very sure that you will find success. Okay, so let us begin with the adverbs. Now adverbs are the words which qualify not only verbs but also adverbs, other adverbs, and also adjectives. So there is a lot that is done by adverbs. Okay, they are very hard working parts of speech. Okay, so we'll come to those examples again later. Let us look at the kinds of adverbs there are. Okay, there are first the adverbs of time that tell you when an action took place. She visited me today. She always tells the truth. I have not yet visited the new neighbors. अब yet मैंने नेगेटिव इसलिए लगाया है क्योंकि जब not यूज़ होता है ना, उसके साथ में yet बोलते हैं, है ना. I have done the work तो बोलेंगे I have done the work, ठीक है. लेकिन अगर नहीं किया है तो क्या बोलेंगे? I have not done the work yet, अभी तक. तो अभी तक ना हम नेगेटिव में ही यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव बताया है. फिर now she is going to visit us. now I'll teach you during the exams. I met my old friends recently. ठीक है. फिर आया हमारा adverbs of place. कैसे यूज़ करते हैं इसको? मतलब action where the action has taken place. Everywhere, nowhere, जैसे everywhere. You can find good people everywhere. Nowhere have I found a true friend. Come here, go there. Okay, he is coming here to spend his holidays. I don't want to go there. Above. Okay, these are all adverbs of place. Above है, below भी है ना. यहाँ पे action की बात हो रही है इसलिए, है ना. Not in the sense of position, but the action, the place where the action is taking place, not relative position of two nouns or pronouns जो preposition में होता है, not that. ठीक है. Adverb of manner, how an action is taking place. She is singing sweetly. He treats everyone kindly. Fill out the form carefully. He drives fast. The mother is handling the baby gently. The boys are playing roughly. She accepts compliments graciously. ठीक है. Adverb of degree का मतलब है जो भी एक्शन हो रहा है to what extent हो रहा है ना. ये ट्रस्ट वर्ड्स के साथ में या कैसे बोले उसको, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स के साथ में बहुत यूज़ होता है ना. जैसे I trust you entirely, है ना. She trusts you completely. He praises you highly, है ना.
I barely saw I could barely meet my parents during the holidays. Oh, she cooks awfully. ये यहाँ पे था, ये वाला जो मैंने आपको बोला ना कि कई बार है ना, ये इसमें ट्रस्ट और फेथ के साथ में बहुत यूज़ होता है ये. शायली. ओके, शी स्माइल्ड शायली. एक्शंस तो सारे वर्ब्स ही हैं, लेकिन इसके साथ में ये वाले कि किस टू व्हाट एक्सटेंट, है ना. ये वाला है ना, ये यहाँ नहीं होना चाहिए. वही मैं सोच रही हूँ कि ये यहाँ कैसे आ गया. हाँ, ये ठीक है ना. ये तो इधर ही आना चाहिए था. तो एक बार लिखते लिखते ना ध्यान नहीं रहता है. ऑल राइट, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मतलब कोई एक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या हुई है. इसके ऊपर एक पूरा वीडियो है ना, अलग से सिर्फ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर है. इसलिए मैंने इसको ना यहाँ ज़्यादा लिखा ही नहीं है, क्योंकि एक पूरा वीडियो इसके ऊपर है कि हम किसको ऑफन बोलेंगे, किसको रेयरली बोलेंगे, किसको ओकेजनली बोलेंगे, किस तरह से हम उनको वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए, क्या डिफरेंस होना चाहिए रेयरली और ओकेजनली के बीच में, है ना. तो ये वो उस वीडियो में मिल जाएगा आपको, है ना. मैं इसके साथ में उसका लिंक शेयर कर दूँगी, ठीक है. तो ये तो हो गए हमारे एडवर्ब्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, है ना. अब एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि जो हमारे एडवर्ब्स हैं वो कैसे क्वालिफाई करते हैं. ये वर्ब्स के तो आपने एग्जाम्पल देख लिए. अब एडवर्ब किसी एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है ना. जैसे अभी हमने देखा कि ये फास्ट है ना, ये एडवर्ब है. तो यहाँ हम देखते हैं कि वो वर्ब को कैसे क्वालिफाई कर रहा है ना. ही ड्राइव्स फास्ट. तो यहाँ पे ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ना. हाउ डज ही ड्राइव फास्ट. अब हम देखते हैं कि एडवर्ब को कैसे करता है. ही ड्राइव्स वेरी फास्ट. तो ये क्या है, ये तो हमको पता ही है कि ये तो एडवर्ब है. एडवर्ब को ये वेरी, टू व्हाट एक्सटेंट यहाँ पे आता है वेरी, है ना. तो ये अभी किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस एडवर्ब को, ठीक है. तो वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, और एडजेक्टिव, इट क्वालिफाइज एडजेक्टिव्स आल्सो. हाउ. शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल. गुड क्या है, गुड एडजेक्टिव है. और ये जो वेरी है ना, ये तो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है. तो एडवर्ब्स किसको क्वालिफाई करते हैं, वर्ब्स को, अदर एडवर्ब्स को और एडजेक्टिव्स को, इनको क्वालिफाई करते हैं, ठीक है. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर the video on adverbs, and next videos that you will see will be on verbs. So I may take about 3 videos to cover all the verbs, and the last of that would be your different kinds of the modals, transitive, intransitive, finite, non-finite. So the last video would be on finite, non-finite verbs. और उसके बाद में finite, non-finite verbs जब हम कर लेंगे सारे, उसके बाद में फिर हम लोग शुरू करेंगे हमारा क्लॉजेज फ्रेजेस, ठीक है. क्योंकि वो जो फाइनाइट, नॉन फाइनाइट और जो हमने कंजंक्शंस किया था इसके पहले वाले वीडियो में, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको बहुत काम आएगी जब हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड टाइप्स ऑफ क्लॉजेज करेंगे, ठीक है, और क्लॉजेज फ्रेजेस जब करेंगे, ठीक है. तो आगे की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है. कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियोज़ एंड कीप गिविंग मी फीडबैक एंड लेट मी नो व्हाट एल्स इज इट दैट आई कैन हेल्प यू विथ. थैंक यू सो मच. बाय बाय.